Hello, guys. How are you? Hope you are well. So, my name is Ankit Dikshit, and today I'm here for you with the new things, the new knowledge, new idea, new innovation. So, I'm here as your English friend. I will help you if you have problem in English. You can solve your queries, doubt in English. So there are various things in English. There are several things in English. Let me tell you what are the things in English. First thing is that, as I have told you in the previous class, there are grammar and vocabulary. Apart from grammar, there are a lot of things like tenses. There are tenses, and you know very well, apart from tenses, the present, past, future. In the tense, if I talk about the tense, there are three tense: present, past, or future, and these three have a four part: present, past, and future. Present, past, and future. These all three have a four part of each. Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. So same as like a past will have a same portion: past indefinite, past perfect, present indefinite, present past indefinite, past perfect, sorry, past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. So same will be there for the future: future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Now let me tell you what are their use, what are their role in English. Present means currently, it relates to you now or daily basis. Present indefinite means it shows your daily routine life. It's a part of do, does. It's a part of present indefinite. Present continuous. Is MR is are the part of present continuous. The is MR as we use action plus ing. I have taught you in the previous class.
And perfect. Perfect shows काम perfect है. The work is over. It is used have and has. With has have. With is we'll use ing form in the verb. With has have we will use third form in the verb. Present perfect continuous shows the duration. Means have been, has been, it will show. Have been or has been. And ing also form will come along with the have been, has been. It shows कोई भी काम कब से चल रहा है, किस पीरियड से चल रहा है. Since forward लग जाएगा आंसर में. अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो बनाए जाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में. डू यानी क्या आप ऐसा करते हो रूटीन लाइफ के बारे में. डू shows your routine life. Do does shows your routine life. रूटीन लाइफ में डेली एक्शन में जो भी काम आपके होते हैं, हैबिट्स होती है, उसकी क्वेश्चन करने के लिए डू यूज करते हैं. क्या आप ऐसा करते हैं? डू यू एक्शन. क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? डू यू एक्सरसाइज. क्या आप बाइक चलाते हैं? डू यू राइड द बाइक. सो क्या आप ऐसा करते हैं? और थर्ड पर्सन के लिए डज लग जाता है. क्या वो ऐसा करता है? डज यू एक्शन. और सी सिंगुलर नाउन. डू फॉर द प्लूरल मोर देन टू की हैबिट्स पूछ रहे हैं यहाँ पर रूटीन लाइफ के बारे में. डज फॉर द सिंगुलर एक कैंडिडेट है तो डज यूज करेंगे. लाइक ही सी इट होता प्रेजेंट में ये सेम है इसका रोल भी, बट ही सी इट के लिए हम डज यूज करते हैं. क्या वो ऐसा करता है? डज ही एक्शन. क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट. क्या वह क्रिकेट खेलती है? डज शी प्ले क्रिकेट. मना करना तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ही डज नॉट टॉक टू मी. शी डज नॉट टॉक टू मी. सो इफ वी टॉक अबाउट continuous shows that जारी है काम. as I have taught in the back class previous classes, continuous shows that जारी है कोई भी काम. like I'm waiting, I'm still waiting, he's still coming, she's still preparing food. Work is going on under process, then we use is a mark. so simple. has a for the perfect काम perfect हो गया. ये पार्ट है हमारा present perfect की पोर्शन का. has a काम हमारा perfect है, हो चुका है. The work is over, work is done, work is perfect. Then we use has have. Singular के साथ has use होता है, plural के साथ have होता है. I have taught you in the previous classes. Have been has been show कराता है guys. Has have के बाद तो third form लग जाएगी और have been has been show कराता है duration. कोई भी काम इतने समय से चल रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो I have been teaching for 2 hours. एक चीज हमें और ध्यान रखना होगा since और for का यूज. since और for. since यूज होता है certain timing के लिए. certain timing means the name of time आ जाएगा यहाँ पर. certain timing या name of time. certain time आएगा या फिर name of time आएगा तो यहाँ पर since लगेगा. since दिवाली, since January, since morning, since 2 o'clock, since 1991. I have been teaching since 2000. तो गाइस फॉर लगेगा अनसर्टेन टाइमिंग के लिए. अनसर्टेन टाइमिंग मींस हमें पता नहीं है कौन सा वो टाइम है. I have been waiting for you for 2 hours. He has been waiting for me for 2 hours. She has been waiting for me for 2 hours. अनसर्टेन टाइमिंग के लिए हम लगाएंगे. अब पता नहीं भी कौन से घंटे हैं वो. तो I have been living in Delhi for 15 years. I have been working here for 15 years. तो वहां पर आपको for लगा देना है. It has been raining for 3 hours. He has been doing the job. He has been employed here for 3 years. तो अनसर्टेन टाइमिंग है जब नाम नहीं आएगा किसी चीज का तो वहां पर हमें for लगा देना है. अगर नाम आ जाएगा टाइम का तो वहां में since लगाना, याद रखना. So now let's talk about the same things will be repeated in all past and future also. Past indefinite. What is past indefinite? Did come in past indefinite. Like to ask a question of past, क्या आपने ऐसा किया था? We use did over here. क्या आपने स्टडी करी थी? Did you study? क्या आपने एक्सरसाइज करी थी? Did you exercise? क्या आपने दरवाजा खोला था? Did you open the door? क्या आपने दरवाजा बंद किया था?
डिड यू क्लोज द डोर, क्या आपने पूछा था, डिड यू आस्क, क्या आपने खाना खाया था, डिड यू प्रिपेयर द फूड, सॉरी डिड यू टेक फूड, क्या आपने खाना बनाया था, डिड यू प्रिपेयर द फूड। मना कर देंगे तो आई डिड नॉट प्रिपेयर द फूड, मना करने के लिए सेम हो जाएगा। तो ये डू का पास्ट ही डिड है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, पास्ट में डिड लगा देना है, मना करेंगे तो आंसर देंगे तो वहां पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे पास्ट में बहुत बोलता है, आई क्लोज द डोर, आई ओपन द डोर, आई लॉक्ड द डोर, आई नॉक्ड द डोर, आई एक्सरसाइज्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट डिड। सेम हो जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, डिड दे, डिड यू, डिड ही, डिड शी, और नो चेंजमेंट विल हियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस शोज वाज वर्ड, कंटीन्यूअस है भाई, तो कंटीन्यूअस का मतलब है जारी है, वाज एंड वर्ड। वाज फॉर द सिंगुलर नाउन, एक के लिए वाज, दो है एक से ज्यादा नहीं तो वर्ड लग जाएगा। सेम इसके साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, यू यूज आईएनजी फॉर्म विद द वाज वर्ड। जैसे चल रहा था, ऐसे समय से हो रहा था, वर्क वाज अंडर प्रोसेस, आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज मिसिंग यू, ही वाज नॉट रिसीविंग माय कॉल, ही वाज डिक्लाइनिंग माय कॉल बिकॉज ही वाज बिजी। तो वॉज पर लग जाएगा यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट तो पता ही होगा आपको, शो कराता है काम हो चुका था, कंप्लीटनेस में शो कराता है परफेक्ट। ऐसा हो चुका था तो यहां पर लगेगा हैड। हैव और हैज और हैड इन तीनों के साथ कर फॉर्म लगानी है आपको। ऐसा उसने कर लिया था, हो चुका था। When I went there, he had moved, he had gone from there. When I called you, then you had denied. जब मैंने आपसे पूछा, जब मैंने आपको कॉल करा था, तो आपने मना कर दिया था। When I reached there, he had slept. जब मैं वहां पहुंचा तो वो सो गया था। So had ये भी हो चुका था, have हो चुका है, had हो चुका था। Past perfect continuous same, had been action plus ing, had been action plus ing, had been के साथ action plus ing आएगी, मतलब इतने समय से ये काम हो रहा था, वो 2 महीने से जॉब पर जा रहा था। He had been going to the job or going to office for 2 months. वो 2 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही थी। He had not been getting salary for 2 months. वो 2 महीने से मुझे तंग कर रहा था। He had been teasing me for 2 months. So guys, ऐसा काम इस समय से चल रहा था, तो वहां पर had been लग जाएगा। had been चल रहा है, had been चल रहा था। Next we talk about the future. Future is very simple part of English. It's a very easy guys. You may know that, आपको शायद पता भी होगा। फ्यूचर बोले तो ओनली विल, यहां पर विल का जज्बा है, कायम है, ज्यादा कुछ नहीं करना, विल लगाओ और उस काम का नाम लगा दो। क्वेश्चन करो तो विल लगा दो, मना करना है तो विल लगा देना है, और हाँ में जवाब आएगा तो विल लगा देना है उस काम का नाम। जैसे विल यू अपॉइंट वर्कर इन कंपनी, यस आई विल अपॉइंट वर्कर इन कंपनी एंड आई विल नॉट अपॉइंट वर्कर इन कंपनी। कुछ लोग सेल का भी यूज कर लेते हैं, सेल का यूज पुराना हो चुका है, सेल का यूज अनुमति लेने के लिए या परमिशन एडवाइस लेने के लिए यूज होता है। विल मतलब फ्यूचर में बहुत ही रेयर हो चुका है। तो मैं ऐसा करूंगा तो सिंपल विल, विल बोले तो फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में लग गया था हमारा विल बी, क्योंकि बी हमारी इस मार्क की फॉर्म होती है, इसमें एक्शन प्लस आईएनजी आ जाएगा। क्यों आएगा आईएनजी? क्योंकि बी हमारी इस मार्क की फॉर्म होती है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा चल रहा होगा। ऑफिशियली लैंग्वेज में विल से ज्यादा विल बी यूज होता है। I will be going to market from tomorrow onwards. I will be going to office from tomorrow onwards. I will be coming. I will be meeting you. I will be calling you after 1 hour. I will not be coming tomorrow. So simple. Simple. Next हमारा आता है future में future perfect. Had been, will have been next number sign. Future perfect sorry. Future perfect में आता है will have. Will have यानी perfect हमारा शो कर रहा था completion. ऐसा काम हो चुका होगा, मैं 10 बजे तक पहुंच चुका होऊंगा वहां पर। I will have reached there till 10 o'clock. हम मंडे तक
अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे. वी विल हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क टिल मंडे. ऐसा हो चुका होगा. परफेक्ट शो कराता हमारा टाइम ड्यूरेशन. मैं मंडे से ऑफिस जा रहा हूँगा. आई विल हैव बीन. फ्यूचर परफेक्ट शो कराएगा विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी. हम दिवाली से ऑफिस अटेंड कर रहे होंगे. वी विल हैव बीन अटेंडिंग द ऑफिस सिंस दिवाली. हम 2 साल बाद से दिल्ली में रह रहे होंगे. वी विल हैव बीन लिविंग दिल्ली आफ्टर 2 years. सो गाइस, अब हम बात करते हैं. ये तो हमारा था, इट वॉज ऑल अबाउट टेंस. टेंस के पार्ट में बहुत सारी चीजें होती है, लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश. सो वी हैव लैक ऑफ टाइम एंड यू मे हैव आल्सो. बट टेंस अगर आपको आ जाते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी. सो अपार्ट फ्रॉम टेंस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मॉडल्स आर देयर, फीलिंग्स आर देयर, or WS families are there, prepositions are there, conjunctions are there, part of the speech is there, which I cannot tell you in the one video. So hope you may have understood this my topic, and thank you for watching my video. Please like us, subscribe us, and share us and comment us. Have a good day. Bye.